Nvidia beat their earnings once again. तो हम देख सकते हैं कि earnings per share came in at $1.87 versus $1.76, which was estimated, and revenue also came out to be $81.62 billion versus $78.86 billion estimate. So we see a beat in terms of Nvidia's earning on both fronts. Following this news, we still have Nasdaq going higher, and ये momentum अभी भी काफी strong लग रहा है on a technical chart basis. Oil continues lower here because we have seen positive talks between US and Iran in the past couple of days, and इसलिए oil अभी अपने daily support पे है, which is it is hovering around $98. Yields are still elevated, and they are currently holding at support. This resistance has now turned to support, so yields are continuing to move higher, and this is due to inflation expectations. So let's break down all of this in this video today, and हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, and then we'll also look at different assets that I have been trading and मेरे क्या current trades active हैं. So I'll also tell you guys that. So with that, let's get into the video. Before we get into this video, I would just like to give a quick disclaimer कि जो भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, those are just my thoughts and opinions, and जो मैं अपने trading account में चीज़ें कर रहा हूँ, that is all that I'm sharing here, एंड ये किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑयल. ऑयल इज एक्चुअली स्टिल एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज ऑयल अभी भी इस रेंज के अंदर है. दिस रेंज बिटवीन $110 एंड $85. एंड जब तक ऑयल इस रेंज के बीच में रहेगा तब तक वी विल सी हायर इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन विल बी स्टिकी बिकॉज ये जो 99 to $100 मार्क है, एंड इतने एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस के साथ इन्फ्लेशन विल डेफिनेटली मूव हायर, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम दिस लेटेस्ट सीपीआई एंड पीपीआई प्रिंट दैट वी हैड. क्योंकि पीपीआई के केस में वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम 4.9% हमें इन्फ्लेशन रीड मिलेगा, बट वी एक्चुअली गॉट 6%, विच वॉज मच हायर देन व्हाट द इकोनॉमिस्ट्स वर एंटिसिपेटिंग. So abhi ke liye it does feel like oil is still moving higher, and then so is inflation. Although yesterday, because US Iran ke beech mein we had some positive talks, so we have seen a push lower on oil. It was down about 5% yesterday. So let's see how this plays out, and because oil higher move kar raha hai, so in correlation to this we also have something else moving higher, and those are yields. नाउ ये एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू ट्रैक इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, बिकॉज हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस मीन्स हायर यील्ड्स. एंड आप इसको, अगर आप यील्ड्स को उतने अच्छे से नहीं जानते हो या ट्रेड नहीं करते हो, तो यू कैन ऑल्सो सी दिस एज हायर डॉलर. बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यील्ड्स हायर मूव करेंगी एंड डॉलर हायर मूव करेगा, बिकॉज फिर उस केस में फेड रेट कट्स नहीं कर पाएगा, फेड को रेट हाइक्स करने पड़ सकते हैं उल्टा, and इसलिए we are seeing the yields and dollar moving higher in response to higher inflation. Due to higher yields, we have seen the Nasdaq pull back a little bit in the past couple of days, but now today after Nvidia earnings, we are still seeing that push higher again, and this is because Nvidia का बहुत strong result आया है. Both earnings and revenue पे beat है Nvidia की साइड से, जो Nvidia की earnings report थी, and so that is why we are seeing this push higher. ये जो स्टॉक मार्केट की रैली है नैस्डैक और ये इंडिसेस में, ये एक्चुअली कुछ बड़े नाम पे ही टिकी हुई है, एंड उनमें से एक है एनविडिया. सो एनविडिया का अच्छा रिजल्ट मीन्स दैट वी कुड स्टिल go higher and continue this momentum that we have been seeing, because AI boom is all that this market seems to be talking about. As for me, I do like the Nikkei, so मैंने इसके अंदर actually Monday को trade लिया था when we were testing this 0.618 fib level. Because मैं थोड़ा सा इधर confused था, तो what I waited for was a rejection. We came into this area of support and went higher. So then I entered this trade, but later on we did move lower even more on this day and on this day. And this happened because yields are continuing to move higher. अब अगर yields move करेंगी higher, तो that is basically a rate hike, which means कि companies को नुकसान होगा, because फिर लोन लेना और महंगा हो जाएगा, and वो उतने अच्छे से अपना business expand नहीं कर पाएंगी at lower costs. So that is why on these 2 days, because yields were higher,
we saw a move lower from the Nikkei, and इस वीक ने एक्चुअली मेरे को ऑलमोस्ट टेक आउट कर दिया था ट्रेड से, बट आई एम स्टिल इन दिस ट्रेड जस्ट बाय अ विस्कर एंड थोड़े से ही मैं बच गया बिल्कुल. सो we are now seeing a V-shaped recovery in the Nikkei. I want to see how price reacts to this level because ये काफी अच्छा supply है. Plus we have this fair value gap over here. So I will have to see कि यहाँ पे price कैसे react करता है. But what I'm looking for in the Nikkei right now is कि हम इस area को break करें, then retest करें, then we move higher. So उस केस के अंदर अगर हम इस एरिया से ऊपर निकलते हैं तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ट्रेल करने लग जाऊंगा. पर अभी के लिए स्टॉप लॉस स्टिल यही है एंड आई एम नॉट रियली लुकिंग टू ट्रेल इट फर्दर अंटिल वी ब्रेक अबव दिस सप्लाई दैट वी हैव ओवर हियर. So this is what I'm looking for in the Nikkei. एंड अभी के लिए दिस इज अ वेरी गुड वी शेप्ड रिकवरी जो हमने देखी है पिछले 2-3 दिन में, बिकॉज वी सॉ यील्ड्स मूविंग लोअर जैसे ही हमने यूएस ईरान की पीस टॉक्स देखी. सो इसलिए ऐसी रिकवरी आ रही है मार्केट्स में. बट लेट्स सी कि क्या होता है, क्या फाइनली एक डील फाइनलाइज होगी. सो वील हैव टू कीप एन आई ऑन दैट. बट राइट नाउ आई थिंक दिस मार्केट still has room to continue further on optimism after Nvidia's earnings, because Nvidia की earnings इतनी strong थी and ये market 2-3 बड़े names पे ही टिका हुआ है जैसे कि मैंने आपको बोला. तो I think we could still maybe chop around here or go higher. So I think that is my base case right now. Another trade that I have right now is on the Aussie dollar and I'm long this currency pair. So इसके अंदर भी actually मैं almost stopped out हो गया था after we saw expansion in US yields and we moved higher. तो इसके अंदर almost I got stopped out, but I didn't actually get stopped out. It was closed though. So yesterday, because of the Iran peace talks, we saw a move lower in yields and US dollar, and so we saw Australian dollar move higher. But today what we're seeing now here is एक तो यूएस डॉलर में आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है बिकॉज ऑयल इज मूविंग हायर. प्लस अभी अभी 7 a.m. in the morning we had Australian dollar का labor data which was very weak. So we were expecting 4.3% unemployment rate, but we got 4.5%. Then employment change भी negative था. So that is really bad because for the Australian economy, because labor market में हम एक weakness देख रहे हैं. तो जो अभी तक RBA है, जो RBA रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो जो अभी तक रेट हाइक की बात कर रहा था वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज लेबर डेटा अनएक्सपेक्टेडली वीकन हो गया है. सो RBI विल प्रॉब्ली लुक टू होल्ड रेट्स बिकॉज इस केस में रेट हाइक्स करने से और ज़्यादा हार्म हो सकता है इकोनॉमी को एंड लेबर मार्केट को. सो आई थिंक इसलिए अभी के लिए थोड़ा सा इसलिए वी आर सीइंग दिस पुश लोअर. बट लेट्स सी बिकॉज ओवरऑल डेटा ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी से अभी भी अच्छा ही है. But because we've had this negative labor data, I do need to assess कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर अब फंडामेंटली कैसा लग रहा है. क्या मैं अभी ये ट्रेड एग्जिट कर दूंगा जिस बिकॉज लेबर मार्केट का डेटा वीक आया? तो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. आई विल स्टिल कीप दिस ट्रेड ऑन एंड जब तक मेरा स्टॉप लॉस इस ट्रेड में नहीं जाता है तब तक आई विल नॉट एग्जिट दिस ट्रेड. So my stop loss is still here at 0.70736 एंड जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा इस ट्रेड के अंदर तब तक मैं ट्रेड एग्जिट नहीं करूंगा. बिकॉज क्योंकि पहले मैंने जो ये ट्रेड लिया था वो इसलिए लिया था बिकॉज ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी वाज डूइंग वेल एंड स्टिल इज. इट्स जस्ट दैट एक मेट्रिक बुरा आया है एंड यूजुअली मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब मैं एक ट्रेड एंटर कर लेता हूँ on the backdrop of strong economic data and technicals and everything, तो मैं उस ट्रेड को तब तक एग्जिट नहीं करता हूँ जब तक कि उस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस नहीं चला जाता है. सो इसलिए मैं ये ट्रेड अभी एग्जिट नहीं करूंगा एंड आई विल कीप दिस ट्रेड ऑन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. So actually another pair that I wanted to take a trade on was Australian dollar / Canadian dollar and I wanted to do it here, exactly here. आप देख भी सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना वो लॉन्ग ट्रेड वाला वो सेटअप भी किया हुआ था एंड ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास भी था.
प्लस 0.5 फिब लेवल के पास भी था. सो आई वांटेड टू एंटर दिस ट्रेड, बट द ओनली थिंग वाज कि जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक कर रहा था तब मेरे पास वो फंडामेंटली वो रीडिंग नहीं थी जो अब है मेरे पास. सो फंडामेंटली उस टाइम पे मेरी जो बायस थी वो न्यूट्रल थी. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट एंटर दिस ट्रेड, बट आई एम लुकिंग फॉर पुल बैक्स. अगर हम इस 50 डे मूविंग एवरेज को वापस टेस्ट करने आते हैं तो probably I'll be a buyer on this, but I'll have to, of course, like I said, reassess my bias on the Australian dollar because we've had some weak data today, and so I'll update you guys कि मैं इस trade में क्या करता हूँ. But this is also something that I'm keeping an eye on. So I actually got stopped out of this trade in GBP slash Australian dollar right here. Uh, I think this was on Monday. This was Tuesday. Okay, so I got stopped out of this trade on Tuesday, and इसके अंदर I took a loss of about $50, I believe. So I got stopped out for $50 in this trade, and that is all right. Actually मेरी जो मैं आपको बताता हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था. मेरी जो बायस थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे ऑफ कोर्स वो बुलिश थी, एंड आई वाज वेटिंग कि हम इस 0.618 फिब लेवल से या 0.5 फिब लेवल से रिजेक्ट कर देंगे. बट प्राइस ने अग्रेसिवली ये दोनों एरियाज कंट्रोल में लिए बायर्स ने, एंड नाउ वी आर सीइंग अ मूव हायर फ्रॉम दिस एरिया. तो मेरा जो प्लान था वाज कि यहाँ से हम प्रॉब्ली रिजेक्ट कर देंगे एंड वी विल मूव लोअर, बिकॉज जीबीपी का जो डेटा था वो उतना स्ट्रांग नहीं आ रहा था रिसेंट टाइम में, एंड जबकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डेटा काफ़ी स्ट्रांग आ रहा था. तो मेरी बायस वही थी कि यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, और जैसा कि मेरा शॉर्ट ट्रेड था, एंड फिर वहाँ से आई विल प्रॉब्ली लुक टू टेक दिस ट्रेड लोअर. बट दैट अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट हैपन, एंड हम काफ़ी ज़्यादा हायर अग्रेसिवली मूव किए. सो आई गॉट स्टॉप्ड आउट ऑफ दिस ट्रेड समवेयर अराउंड हियर एंड फॉर अ लॉस ऑफ $50. बट दैट इज़ फाइन एक्चुअली, बिकॉज अब इसमें क्या ही कर सकते हैं. इट्स जस्ट अनदर ट्रेड फॉर मी ऑन माई अकाउंट, एंड आई कांट रियली लुक एट दिस इन अ नेगेटिव वे, बिकॉज ये मेरा बस काम है. जब भी मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरे को किसी भी पेयर में एंट्री मिलती है तो आई डीप डाइव इनटू दैट पेयर. आई ट्राई टू प्लान अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट पर्टिकुलर पेयर कि मैं कैसे ट्रेड एंटर करूँगा, कैसे ट्रेड एग्जिट करूँगा, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. तो वो सब चीज़ें मैं प्लान करता हूँ. बट ऑफकोर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती है. आप चाहे कितनी प्लानिंग कर लो, चाहे आपका कितना ही अच्छा सेटअप हो, देर आर ऑलवेज इंसिडेंट्स लाइक दिस, एंड देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी लूजिंग ट्रेड्स. एंड सो ये एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, एंड यू कांट रियली अवॉइड दिस. सो I always say कि it's not about this trade or the next trade or next 5 trades. It's always about the next 1,000 trades जो आपका account build करते हैं. And so you have to keep following your strategy. You have to stick to your rules. And I think वही सबसे ज़्यादा matter करता है कि आप अपनी strategy पे ध्यान दें. जो आपकी strategy है वो बार बार change ना करें. एक बार एक अच्छी strategy पकड़ें and उस पर ही practice करते रहें, जिससे आप और improve होते रहेंगे. अगर आप बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे क्योंकि मेरे को लॉस हो गया, ये ट्रेड गंदा गया, ऐसे एक एक दो दो ट्रेड के ऊपर अगर आप स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी में अच्छा बनना. सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी पकड़ें, उसको बैक टेस्ट करें 2-3 साल 5-6 साल पीछे जा जाके कि वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली प्रॉफिट्स बनाती है कि नहीं, एंड देन यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट स्ट्रैटेजी एंड देन स्टिक टू योर रूल्स नो मैटर व्हाट हैपेंस. So this is it for this video. This is all that I wanted to cover. मैंने नीके की बात कर ली. तो मेरे currently दो ही trades on हैं, and that is in the Nikkei and Australian dollar slash US dollar. So दोनों में भी मेरे trades running हैं, and like I said मैं GBP slash Australian dollar में I got stopped out of my trade. So अभी के लिए I have 2 trades running and let's see how they play out. इसके अलावा I believe because Nvidia की strong earnings आई हैं तो थोड़ा सा we should see a push higher, but then again अगर ऑयल करंट लेवल्स पे रहेगा तो ऑफकोर्स यील्ड्स प्रेशर डालेंगी स्टॉक मार्केट पे एंड इंडिसेस पे, एंड ज़्यादा देर स्टॉक मार्केट इग्नोर नहीं कर पाएगा इस फैक्ट को जैसा कि अभी कर रहा है. मतलब नैस्डैक तो क्लियरली इग्नोर कर रहा है, साइड लाइन ही कर दिया है, बिकॉज इट्स स्टिल नियर इट्स हाइज, एंड जबकि इन्फ्लेशन इतना हाई है, यील्ड्स आर मूविंग हायर. सो आई थिंक करंटली ये मार्केट इज नॉट रियली वरीड अबाउट दैट. इट जस्ट वांट्स टू look at positive things like Nvidia's earnings and AI boom and what's the next thing. So ये बस एक रैली हायर कंटिन्यू करने के लिए उन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है.
बट आई थिंक अगर हील्स वाला थ्रेट एंड इन्फ्लेशन का जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा और रियल होता दिखेगा, तो आई थिंक दिस मार्केट विल हैव नो अदर ऑप्शन देन टू पुल बैक. सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मेरे को कोई रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है. आई वॉन्ट अ पुल बैक फर्दर इन टू डिमांड लेवल्स and previous levels of resistance that got turned into support. So that is what I'm looking for in the Nasdaq and all of the indices pretty much. So आज की इस वीडियो में इतना ही. We'll discuss more in the next videos that I'll make. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one.